Trump, who's now standing in the way of Kamala Harris potentially becoming the first ever woman president of this country. On the other hand, Trump looks like 2024 for him is unfinished business. Remember, in the history of American presidencies, a successful president is almost always decided by whether he gets a second term. Trump believes he was robbed of a second term in 2020 in an election which him and his supporters have been denying that they ever lost in the first place, and more importantly, they say that that election was stolen away from them. So this is a chance at redemption for Trump, his MAGA base, and of course, a lot of non-Trump aficionados or non-Trump lovers who are also backing him this time around. In fact, we've been in Washington for the last couple of days, and people that we normally speak to 4 years ago or 8 years ago who were reluctant to say that they were supporting Trump, this time around are quite openly saying that they would prefer to back Trump. Now, what's working for him is the message that he's a strong man, and that when he was in office, the economy was doing better. At least average Americans were feeling their economic plight was better than what it is right now. So he's running on that record. He's also running on what he calls the misgovernance of the Biden-Harris administration. But let's be very clear. This race is going to go down to the wire. It's going to boil down to about half a dozen swing states, 3 in the north, about 4 in the south. That's Michigan, Wisconsin, Pennsylvania in the north, which is a must-win for Kamala Harris. There is no path for her to 270 without winning these 3 states. On the other hand, Trump is looking strong in the southern Sun Belt states, Georgia, Nevada, Arizona, North Carolina. He won only 1 out of those 4 last time around in 2020. This time he is leading in almost all of them. One significant thing that we should pay attention to is the turnout. Already 75 million Americans have voted early, either through mail-in ballots or through early in-person voting. That's almost half of the total turnout of 2020. The question is, how many more will turn out today on election day? It's about which of the 2 bases are more enthused and find it more attractive to come out and feel more aggrieved or feel more passionately about putting their candidate in the White House. The question really is, who has the edge going into these battleground states? The Harris campaign feels there is one issue that is resonating statewide, and that is the issue of abortion. And they're looking at the early voting data, which seems to suggest that college-educated white women... अच्छा, आप लोगों को उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी. जो देख रहे हैं, कैन यू प्लीज़ कमेंट कि आवाज़ आ रही है आप लोगों को? non-college-educated white male vote, and also on the youth vote, whether it is black young men or even Hispanic young men who feel left out of this Democratic coalition. So it will ultimately boil down to a fight between the 2 social coalitions, a fight between the ardent supporters of both sides, and ultimately... Thank you very much. अच्छा, मेरे साथ जो है ना एक न्यूज़ लगाई हुई है. मार्केट में खास मूवमेंट नहीं है, तो वी आर ट्राइंग के जैसे कुछ रिजल्ट्स का भी आउटकम साथ साथ आता रहेगा. इसकी आवाज़ को थोड़ी देर के लिए ना वी शुड पॉज. And let's look at the chart. Let's refresh it. अच्छा, BTC का अभी सामने चार्ट है, but we will first look at the gold dollar index and then we will come to BTC after that.
अभी देखें, ये जो हमने लास्ट टाइम आपको जो प्रोजेक्शन दी थी वीकली, हम इस जोन में हैं तकरीबन। मतलब ये जो हमने बताया था आपको, ये वाला एरो, ये हिट करके अभी यहाँ तक आया है। बट ये जो अब एक छोटा सा बैरियर तकरीबन 2745 का, ये क्रॉस होना चाहिए। तो आई एम लुकिंग फॉर दैट, एंड आई थिंक प्राइस जो है वो ऊपर जाएगी, क्योंकि अगर देखते हैं, अभी रिजल्ट्स को भी खैर देखना है। वी नीड टू सी द रिजल्ट्स एंड आल्सो सम न्यूज़ इवेंट्स। तो उस हिसाब से देन वी विल ट्रेड। राइट नाउ स्टे विद मी, आई एम गोइंग टू एनालाइज द चार्ट, और उसके बाद हम इसको थोड़ा सा क्लियर करके, और उसके बाद फिर हम इसको अगेन वी विल do that some analysis on the chart that is a little bit cleared. अच्छा, अब मैं आप लोगों को चीज़ दिखाता हूँ जो कि मुझे लग रहा है कि दैट शुड बी द केस। पहले हम इसको 30 मिनट पे लेके जाते हैं। अच्छा, 30 मिनट मींस के इंट्राडे। इंट्राडे में अभी अगर आप यहाँ पे देखें तो इट इज़ शोइंग सम मोमेंटम ऑफ ब्रेकआउट एंड रीटेस्टिंग। तो ये जो ब्रेक आउट एंड रीटेस्टिंग है, इट इज़ शोइंग लाइक द मार्केट इज़ नाउ गोइंग to rise up at least up to the level of 2760। ये मैं M30 की बात कर रहा हूँ। लेट मी जूम दैट चार्ट इन। मैं भी जो बात कर रहा हूँ उसके ऊपर डायरेक्टली एकदम से ट्रेड मत लीजिएगा, क्योंकि मैं, ऐसा नहीं होता कि यूं ही एनालाइज करके आपको एकदम से कह दूं कि अब ट्रेड ले लें। ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। मैं आपको पूरा, क्योंकि वो एक प्रोसेस है, तो वी नीड टू सी दैट फर्स्ट। अच्छा, लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें तो लॉन्ग टर्म में इट इज एक्चुअली समथिंग लाइक a bearish thing, and after that bearish thing we can see some falling wedge sort of thing also. So M30 is actually showing us a weak bearish momentum, एंड बट ये है कि एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर कि इट इज़ ऑल्सो नॉट शोइंग अ गुड रिजेक्शन एज वेल। तो इनडिसाइसिव टाइप की एक तरह से कह लें कि देर इज सम इनडिसीजन राइट हियर, ठीक है। और बट समहाउ जो जो प्रोजेक्टेड चीज़ लग रही है यहाँ पे वो ये है कि इट हैज़ ब्रोकन आउट दैट राइजिंग दैट फॉलिंग वेज, एंड नाउ इट्स ready to move up in the 30-minute chart. So let's clear that, and again see with the zoom in. Let's zoom into 4 hours chart. अच्छा, अभी जो 4 आवर चार्ट है, इट इज़ a little bit complex chart, but right now you can clearly see कि जो मार्केट है वो अपनी एक जो बुलिशनेस थी उसको कंटिन्यू किया हुआ है इसने, ठीक है। तो वी कैन सी यहाँ पे अभी, तो ये अभी जो वेव है दैट सीम्स लाइक अगर ये ब्रेक कर जाती है ये एरिया, जो कि तकरीबन 2711 के, हम इसको 2710 कहेंगे इसको, ठीक है। हम इसको 2710 कहते हैं। 2710, और we need to draw a horizontal line as well. अच्छा, इससे ऊपर ऊपर जो है ना, वी शुड बी बुलिश, इससे ऊपर ऊपर। बट लेट्स सी न्यूज़ क्या कहती है। लेट मी वॉच दैट न्यूज़।
अभी ब्राजीलियन S&P सर्विसेज PMI है, नो इफेक्ट ऑन गोल्ड। इंपोर्ट एंड बैलेंस ऑफ ट्रेड अभी तकरीबन 1 घंटे में होगा, ठीक है। उसके बाद टुडे S&P ग्लोबल सर्विसेज हैं, S&P ग्लोबल सर्विसेज PMI और ISM सर्विसेज PMI। इलेक्शंस तो हैं ही हैं, इनको साथ साथ वी आर लुकिंग फॉर दैट। मैंने साथ ये जो लाइव सेशन है US इलेक्शंस का सेशन, ये भी साथ साथ ओपन किया हुआ है। Look at this map. We had the blue wall leaning blue on that day, right? She lost all three of those to Donald Trump, which is why ये everybody अभी is फिलहाल hoping हिस्ट्री for बता fair रहे हैं, trade. डेफिनेटली अभी रिजल्ट्स तो नहीं आएंगे आज के दिन। वी कैन एक्सपेक्ट के आज रिजल्ट ना आए, एंड somehow let's see what can be the next thing. अच्छा, ज़्यादा जो चांसेस है ना, वो ज़्यादा चांसेस हैं कि क्रिप्टो में ज़्यादा बड़े जंप्स आएंगे, ठीक है। तो वी कैन एक्सपेक्ट सम गुड मूवमेंट इन क्रिप्टो। और अभी हमने 4 आवर चार्ट देखा, अभी हम डेली चार्ट पे भी जाते हैं, थोड़ा सा इसको जूम इन करेंगे, ठीक है। एंड लेट्स सी एंड कंफर्म। अच्छा, जो ट्रेडिंग है ना, इट इज़ मैं आप लोगों को हमेशा कहता हूँ कि इट्स 90% ऑफ द टाइम इट्स पेशेंस, एंड रेस्ट 10 of the % इट्स ट्रेडिंग एंड ऑल्सो मैनेजिंग योर रिस्क। तो इस वजह से अपने आप को थोड़ा सा इस लिहाज से आप लोग देखा करें कि ऐसा ना हो कि आप स्क्रीन को ही स्टॉकिंग करते रहें, एंड यू आर एक्चुअली नॉट पेइंग अटेंशन टू योर हेल्थ। जी वालेकुम अस्सलाम वसी साहब, thank you very much. All of those who have joined our live stream, I recommend them that you should uh, talk to us in the comment section. So whenever we see your message, we will reply you, and also we are trying कि आज हम अच्छा profit जो है वो निकालें, ठीक है। तो all those who are live must comment your intro, and also comment whatever your question is. We will try to answer that. ट्रेडिंग में हमेशा जो पेशेंस है, इट पेज बैक, ठीक है। और कभी भी आप अगर जल्दबाजी में ट्रेड करते हैं, यू हैव योर सेल्फ विटनेस्ड that whenever you have traded with impatience, it has always given you loss. जी वजी साहब, यस, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं डेली ही तकरीबन करूं, बट राइट नाउ वी हैव डिसाइडेड कि हम ऑल्टरनेट सेशंस ऑल्टरनेट डे पे वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम जब न्यूज़ स्पेशली आए तो वी विल डू दैट इंशाल्लाह। अच्छा, ये तो भी हमने 4 आवर्स की बात कर ली। लेट्स क्लियर इट एंड लेट्स गो टू और डेली सेशन। 4 आवर्स के बाद अब हम डेली पे आ जाते हैं। अच्छा, डेली में ना अभी तक वैसे इन डिसीजन है, इफ़ यू कैन सी दैट, अभी एक बहुत ही बड़ी बेरिश कैंडल आई जो जिसने एक दिन को तो अपना बेयर इनगल्फ कर लिया, बट इफ़ यू सी तो ज़्यादातर जो बेरिश प्रेशर था वो इस बड़ी कैंडल में ही ख़त्म हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर अगेन वी सॉ गुड बुलिश मोमेंटम विद द विक इन आई थिंक थर्सडे, दैट वाज फ्राइडे, ठीक है। और फिर कल मंडे वाले दिन इट वाज अगेन अ डोजी, एंड टुडे वी आर अगेन सीइंग सम
good candle right now. If that candle was here like this, मैं यहाँ पे बुलिश होता अप टू 2760 लेवल, बहुत ही इजीली मैं इसको यहाँ पे आप लोगों को कह देता कि वी आर बुलिश, बट अभी तक फिलहाल इट इज़ नॉट फॉर्म्ड एंड वी नीड टू सी एंड वेट। ठीक है, तो अल्टीमेटली अभी तक फिलहाल मार्केट इट इज़ इन अ वेरी क्लियर बुलिश डायरेक्शन and we are waiting for a good intraday trade. Let's see what opportunity market gives us. Let me go to 15-minute chart, a chart where we find our trades. अच्छा, अब यहाँ पे ये जो मैं आप लोगों को चार्ट भी 15 मिनट्स का शो कर रहा हूँ गोल्ड का, तो यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को आपने देखना है कि हम यहीं पे तकरीबन जो 40-50 पिप्स की जो एंट्रीज होती हैं, अब मैं जो आपको बता रहा हूँ दैट इज़ आवर फर्स्ट टीपी जो हम रखते हैं वो हम 15 मिनट चार्ट पे रखते हैं। सेकंड टीपी जो है वो वी ट्राई कि हम 1 घंटे की जो कैंडल है उसके हिसाब से मार्केट के प्राइस एक्शन को देखते हुए रखें, और थर्ड टीपी जो है वो हम कोशिश करते हैं कि 4 आवर्स के चार्ट के ऊपर रखें। ठीक है, तो ये जो टाइमिंग्स हैं जो मैं आपको बताया है, जिसमें अगर आप 15 मिनट देखते हैं तो लोअर time frame, it is a very lower time frame and it gives you a very good confirmation for a scalping or intraday trade. It doesn't give you any swing trade। ठीक है, इस चीज को आपने जहन में रखना है। अच्छा जी, अच्छा अभी तक तो मार्केट में खामोशी है एंड वी आर नॉट सीइंग एनी सॉर्ट ऑफ, अभी जो मैं इसको एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मार्केट को, दैट इज लाइक द प्राइस मूवमेंट दैट इज लाइक कुछ इस तरह से, तो ट्रायंगुलर शेप में इस तरह से, एंड इट इज अ 15 मिनट चार्ट। ठीक है, भी ट्रायंगुलर मतलब ये इस तरह से ऐसे प्राइस मूव करेगी, देन वी विल लुक फॉर ब्रेकआउट रीटेस्टिंग और लाइक दैट, ऑल्सो न्यूज रिजल्ट्स। अच्छा, इलेक्शन डे तो अभी ये मत सोचें कि अभी इलेक्शन डे तो आज तो बस जी एक वोट डाला किसी को और प्राइस जो है ना वो धड़ाम करके ऊपर या नीचे चली गई। ठीक है, ऐसा नहीं होगा, अभी थोड़ा सा एक अनऑफिशियल रिजल्ट आएगा, अनऑफिशियल सॉर्ट ऑफ कह लें कि जब भी वोटर्स बाहर निकलते हैं वहाँ पे वोट देने के बाद, हमारे लोग तो खैर बिरयानी की प्लेट खाते हैं, तो लेकिन बाकी जो हैं उनको सर्वे किया जाता है। ठीक है, तो बिरयानी की प्लेट के बजाय उनको सर्वे किया जाता है एंड दे आर आस्क्ड कि जो आपने अभी वोट दिया है, विच सॉर्ट ऑफ योर एनालिसिस एंड व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट द वोट यू हैव गिवन एंड दे टू गिव दैट सर्वे। अच्छा, डे वन का एनालिसिस, एनिमीज शो, ओके ब्रदर, मैंने अभी वैसे डे वन का एनालिसिस किया। इफ़ यू प्लीज गो बैक आई थिंक अराउंड 4 to 5 minutes एंड यू विल फाइंड दैट एनालिसिस देयर। ठीक है, अच्छा अब वहाँ पे जब एनालिसिस करते हैं, जब भी वोट्स कास्ट कर रहे होते हैं लोग और वोटिंग के बाद दे आस्क, दे कंपाइल दैट डेटा। ठीक है, वो जो जितने भी वहाँ पे न्यूज़ एंकर्स होते हैं और वो, तो जब वो कंपाइल करते हैं तो अनऑफिशियल सॉर्ट ऑफ जो आप कह लें कि न्यूज़ चैनल्स होते हैं वो बताते हैं कि यार देयर देयर दीज आर द रिजल्ट्स, पीपल आर वोटिंग दैट पर्सन, पीपल आर वोटिंग दैट पर्सन लाइक दैट। ठीक है, अच्छा जी वसीम साहब, बिल्कुल बिरयानी और बर्गर, यस वहाँ पे बर्गर ही होंगे। यस यू आर राइट, उधर हो सकता है बर्गर हो, हम तो खैर बिरयानी खाते हैं। वोट हमारा वोट एक इज इक्वल टू 1 बिरयानी एंड वहाँ पे वोटिंग चल रही है एंड दे आर डूइंग गुड जॉब। और मैं खैर एक वीडियो में देख रहा था और उसमें वो एक बंदा जो है ना वो ट्रम्प को वोट करने की कोशिश कर रहा है, ट्रम्प को वोट करने की कोशिश कर रहा है, बट सम हाउ वो उसके ऊपर क्लिक करते करते
वो नहीं हो पाता और कमाला हारिस जो है, सॉरी कामला हारिस, कमाला कमाला खैर उनकी जो स्पेलिंग्स है दैट इज लाइक कमाला बट इट्स कामला। आज मैं वो उसमें न्यूज़ में भी सुन रहा, दैट इज कामला हारिस। तो वो उसको वोट पड़ जाता है, ठीक है, खातून को। तो दैट इज समथिंग के जो कह लें कि वहां पे भी कुछ भी हो सकता है भाई, जो सिस्टम चल रहा है इस वक्त अमेरिकन उसमें, एनीथिंग कैन हैपन देयर। एंड हमारी अवाम है, हमारे पाकिस्तानी अवाम, उनका सबसे बड़ा वोट जो मैं समझता हूँ वो ट्रंप को है। क्यों ट्रंप को है भाई? एवरीबडी वांट्स द मार्केट डाउन। सब लोगों के सेल में ट्रेड फंसे हुए हैं, ठीक है। और सब लोगों ने सेल लगाया था 2600 पे, किसी ने 2500 पे, कुछ हेज करके बैठे हुए हैं, कुछ कुछ करके बैठे हुए हैं। and after that they are looking for a very good sell rate। बट ये कि अभी ये तो खैर वी कैन नॉट से कि अच्छा जी डोनाल्ड ट्रंप हैज won and now the market will go in the sell direction। it is not that way। so be very clear in your mind, yes, there is a big opportunity, there is a big possibility that the market can go towards the downside when Donald Trump wins. But remember, there are a lot of factors. Not only elections are there, but there are a lot of factors which are forcing the market towards the upside। What are these factors? Because the next interest rate decision is at the verge। हम लोगों को परसों जो है वो इंटरेस्ट रेट का डिसीजन मिल जाएगा, कल या परसों का इंटरेस्ट रेट का डिसीजन है। सो अब इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन आएगा, डू यू थिंक कि वो इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है वो मार्केट को सेल में रहने देगा? नहीं, बिकॉज at the US, not us, but people at the US, they are withdrawing their investments from banks and putting that all investment in gold and crypto। Why? Because they are now foreseeing that in the longer run, they do not have the opportunity in the बैंक्स इंटरेस्ट रेट्स। आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर कम होंगे ना, इंटरेस्ट रेट कम होंगे। अब जिस तरह पाकिस्तान ने भी जो है वो 2.5% और मजीद रिड्यूस कर दिया है, नौ 15%। खैर हमारे तो इंटरेस्ट रेट जो हैं वो ने बड़े 2.5%। अगर अमेरिका में 2.5% कम कर दिया जाए ना तो गोल्ड इस वक्त 3500 पे पहुंच जाएगा, ठीक है। अमेरिकन इंटरेस्ट रेट्स दे पुट सो मच प्रेशर ऑन ऑन देयर डॉलर इंडेक्स। अच्छा, आई थिंक थोड़ा बहुत ना वो नेट के स्लो डाउन का इशू आ रहा है, बट आई थिंक इट विल बी रिजॉल्व्ड। यू नो दैट हमारे जो मुल्क हैं उसके अंदर मुल्की हालात कुछ इसी तरह के ही हैं, थोड़े पतले ही होते हैं। नेट के रिजल्ट्स अभी तक मार्केट खैर इट इज़ नॉट शोइंग गुड मोमेंटम नाउ, इट इज़ वेरी बोरिंग अप टिल नाउ। एंड विद दीज सॉर्ट ऑफ मार्केट मूवमेंट जो कि अभी आप लोग देख रहे हैं, बस उसको ट्राई टू just scalp or do not trade। I do not recommend trading with very low volume till the time you do not see some good। देखिए बायर्स होते हैं ना, बायर्स के साथ मिल के बाय करें, ठीक है। सेलर्स हैं तो सेलर्स के साथ मिल के सेल करें, बट डू नॉट गो अलोन। ये मार्केट ऐसी नहीं है कि जो एक मूवी हो कि जिसके अंदर आप अकेले जा रहे हैं, आपने अकेले बाय किया हुआ, तो नाउ एव मार्केट विल गो इन योर डायरेक्शन एंड इट विल गो बाय, ठीक है। अच्छा, लो वॉल्यूम आ रहा है, आई थिंक देयर कुड बी सम प्रॉब्लम। मैं एक दफ़ा पेज को रिफ्रेश करता हूँ। जी होपफुली जो आप लोगों का जो वॉल्यूम वाला इशू है, आई थिंक दैट शुड हैव बीन रिजॉल्व्ड। आई थिंक दैट शुड हैव बीन रिजॉल्व्ड और दैट कैन बी, क्योंकि थोड़ी सी बफरिंग टाइप आ रही है, बट आई थिंक इट शुड हैव बीन रिजॉल्व्ड। मैं वो दूसरी साइड पे मोबाइल को भी थोड़ा सा कर लेता हूँ। अच्छा, ये एक ब्रदर एनिमीज शो ने ये क्वेश्चन किया है कि जी इलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं। यस, इलेक्शन बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हुए हैं एंड पीपल आर वोटिंग राइट नाउ। लेट्स सी कि जो वोटिंग रिजल्ट है वो कैसा आता है, ठीक है।
क्योंकि वी आर मोर कंसर्न अबाउट द वोटिंग रिजल्ट्स। अच्छा, कुछ ये लोग कह रहे हैं कि सेल जो है ये कह रहे थे सर, सेल भी तो इतने आराम से नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल, मैंने जो आप लोगों को फैक्टर्स एक्सप्लेन किए हैं, दैट मस्ट बी borne इन माइंड दैट आप जब भी सेल ट्रेड देखेंगे ना गोल्ड का, ठीक है, तो दैट शुड बी वेरी स्विफ्ट ट्रेड, क्योंकि गोल्ड इस वक्त बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल क्यों हुआ है, उसमें ट्रेडिंग वॉल्यूम आप देखें कि इस वक्त जो ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं दैट आर पुट इन गोल्ड ट्रेडिंग, एंड पीपल वांट, जो कि जिस तरह आपकी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं एंड देयर आर स्टेट बैंक्स इन्वॉल्व, there are lot of states involved and they want कि जो प्राइसेस हैं वो हमें थोड़ी सी लो मिले ताकि हम बाय करें, ठीक है। तो देयर कुड बी लॉट ऑफ मैनिपुलेशन, मे बी दे विल पुल बैक द प्राइस टू द डाउन साइड, मे बी टुवर्ड्स 2500 or 2400 or even lower someday, not today, not, I'm not talking that they will bring that price today to that level, obviously it will take some time. There can be a possibility that the price will come down someday because there are institutional traders and there are some big states involved who want to buy the gold at a lower price, ठीक है। तो उस सूरत में क्या होगा कि लो प्राइस पे बाय करने के लिए जो लोग हैं वो रेडी बैठे होंगे, और जैसे ही वो थोड़ी सी लो प्राइस देखेंगे और वो बाय करेंगे। अच्छा, कुछ लोग जो है ना कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं। कॉस्ट एवरेजिंग से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल आपने जो गोल्ड है वो आपने बाय कर लिया 2500 पे, ठीक है, और आपने 1 तोला गोल्ड जो है वो बाय कर लिया है, एंड आफ्टर दैट जब आप को प्राइस जो है वो फर्दर डाउन साइड जाती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, फॉर एग्जांपल 2500 पे बाय कर लिया और गोल्ड 2000 पे आ जाता है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो फिर 1 तोला गोल्ड का बाय कर लेंगे 2000 पे, कॉस्ट एवरेजिंग कर लेते हैं। उससे मुराद ये हो जाता है कि व्हेन दे हैव बॉट द गोल्ड एट 2000 लेवल एंड 1 तोला गोल्ड एट 2500 लेवल, नाउ द प्राइस हैज बीन एवरेज्ड एट 2250, ठीक है। अब वो 2250, अब जो 2 तोले सोना है उसकी कीमत उनको कितने में पड़ गई, 2250 में। तो जब वो प्रॉफिट में आते हैं 2300 पे भी, तो फिर भी दे आर एट द प्रॉफिट। देर आर सम पीपल जो कि कॉस्ट एवरेजिंग करते हैं गोल्ड में, उनके पास बड़ी इक्विटी होती है, वो हमारे जैसे 50-60 डॉलर लेके मार्केट में नहीं फिर रहे होते, ठीक है। दे हैव सम गुड अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट दैट दे पुट एंड देन दे टेक दी अपॉर्चुनिटी, ठीक है। अच्छा, जो जो लोग भी अभी न्यू आए हैं इसके अंदर हमारे साथ, तो ज़रूर जो चैनल है उसके ऊपर एक सब्सक्रिप्शन का बटन होता है, दैट शुड बी प्रेस्ड। अच्छा, क्या होगा कि हम जब भी आपको जब लाइव आएंगे तो बजाय इसके कि आप लोग लिंक्स मांगते रहेंगे, तो आप सब्सक्रिप्शन और प्लस साथ में आप अगर उसका जो एक बेल आइकॉन साथ में दिया होता है उसको अगर आप प्रेस करेंगे तो देन इट विल गिव यू नोटिफिकेशन, ठीक है। तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको फिर बार बार लिंक नहीं मांगना पड़ेगा, जब भी हम लाइव आएंगे आपके साथ नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिकॉज इन द फ्यूचर मी बी वी विल डू और डेली लाइव स्ट्रीमिंग। तो फिर डेली लाइव स्ट्रीमिंग में फिर ये होगा कि आपको मार्केट को साथ साथ बताएंगे। अच्छा, कुछ थोड़ा बहुत ना बीच में वो आ जाती है, एक बफर सा आ जाता है और वो लोडिंग करना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। मैं उस वक्त पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो वो दोबारा से सेटल डाउन हो जाता है, तो डू नॉट बी वरीड अबाउट दैट थिंग, ठीक है, बिकॉज देयर आर सर्टेन नेट इश्यूज इन बिल्ट पाकिस्तान में, आपको पता है कि नेट इश्यूज आते हैं, इन बिल्ट हैं पाकिस्तान के, तो बफरिंग शो होती है, तो डू नॉट वरी, मैं आई एम ऑन इट, आई एम ट्राइंग कि मैं करूं, और एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट आई एम नॉट टेक पर्सन, आई ट्राई माई बेस्ट कि जैसे ही आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस करें कोई इस तरह का, तो मैं फ्यू डेज बैक आई ऑल्सो आस्क फॉर द हेल्प, दैट इफ somebody can help me in that.
Mhm. If somebody can comment that the stream is fine or not, because I'm just looking at the streaming software. Can you see the stream, or what is actually happening right now? Is it showing some buffer? Okay, now I think the stream is resumed. We'll try कि हमारी stream जो है वो resumed ही रहे. थोड़ा बहुत जो है वो बीच में बफर देता है, बट आई एम ट्राइंग. मैंने भी जो मोबाइल का जो हॉटस्पॉट है आई हैव ट्राइड कि उसके साथ इसको कनेक्ट कर दूं ताकि आप लोगों को जो प्रॉब्लम है वो ना आए. तो इफ somebody can comment that the stream is fine now and they can hear our voice clearly and hear the chart also. अच्छा, थोड़ा बहुत बीच में लैग आता है. आई थिंक इट इज नाउ क्लियर्ड. अच्छा, ये क्वेश्चन है जी, ऑयल पे कैसा इम्पैक्ट आ सकता है. ओके. अच्छा, देखें ऑयल का जो इम्पैक्ट है, ऑयल पे आई डू नॉट सी एनी इम्पैक्ट बिकॉज वो जो ऑयल मैन्युफैक्चरिंग जो स्टेट्स हैं, अगर ये रशियन कोई प्रो ऑयल या कोई अपना इरानियन या इराक का कुछ इस तरह से अगर कोई शो हो रहा होता तो देन डेफिनेटली हम उसके ऊपर कमेंट करते, बट बिकॉज दैट इज election in the states of America, so we do not find any sort of impact on oil. ठीक है. हाँ, yes. ये है कि if somebody gives a statement like Donald Trump is winning and he says that we are going to resume our connections with Iran, and then definitely they are going to buy oil from Iran. I mean, that is not possible actually in the real life scenario. But if I'm just quoting a statement like that, maybe they can give a statement like that. And if you find some statement on find some statement from Kamala Harris, or you find some statement from Donald Trump, all like that, that they are going to resume their bilateral relations with Russia, and that can impact on oil, or they are going to define some route of importing oil, some improvement in oil imports or exports sort of that thing. तो वो फिर उसको आप देख सकते हैं कि yes, they are going to have impact on oil prices as well. ठीक है. अच्छा, अब हम एक दफ़ा फिर दोबारा जो है वो चार्ट की तरफ जाते हैं, बिकॉज द यूएस सेशन इज एट द बूम. वी कैन सी a drop here, 2738.92, and we can see a drop here, but let's be cleared about that drop. Also see if we have some news coming. The purpose of this live stream is that you should be aware about how different news, technicals, all these things affect the market. ठीक है. अच्छा,
अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ट्रेड बैलेंस जो है वो यूएसडी का आएगा। अच्छा, इसमें ना लो इम्पैक्ट दिखा रहा है इसको, बट इट इज़ नॉट अ लो इम्पैक्ट न्यूज़, इट इज़ एक्चुअली अ मीडियम इम्पैक्ट न्यूज़ एंड इट कैन गिव सम गुड अमाउंट ऑफ मूवमेंट इन गोल्ड प्राइसेस। ठीक है, तो ट्रेड बैलेंस जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। उसके बाद फिर हमारे पास सर्विसेज पीएमआई, फाइनल सर्विसेज पीएमआई, आईएसएम, और खैर प्रेसिडेंट इलेक्शन तो चल रहे हैं, वोटिंग इज अंडर वे। सो वी हैव अ न्यूज़ अराउंड, हम इसको 5:51 पीएम है इस वक्त पाकिस्तानी जो टाइम जोन है, एंड आफ्टर हाफ एन आवर और 40 minutes we are ready to get the first news of trade balance. After that, we final services PMI. अच्छा जी, अभी चल रहे हैं, अभी न्यूज़ में भी we again here to find out if some Seven closest advancement. battleground states are within 3 points. So if you get an average error and it all goes in one direction. If we get some update about elections, that's why we have opened it for some time. Let's see. It is not working perfectly. अच्छा, अभी ये थोड़ा सा ना क्लियर ब्रेकआउट दिखा रहा है, इट इज शोइंग सम क्लियर ब्रेकआउट, सो बट स्टिल वी विल वेट, still we will wait. A clear downward breakout, the price is showing, and a good bullish momentum, bearish momentum is here. But as I told, we will wait for some time and see if the price action is actually favoring us. Then we will look for a good trade on confirmation only. आपको पता है कि हम अभी जो जितने भी ट्रेड्स करते हैं, वी नेवर डू इट विदाउट confirmation. We always tell you that here is the confirmation and after that we trade. ठीक है, तो थोड़ा सा we need to see, we need to wait. अच्छा, थोड़ा सा ना ये भी देख रहे हैं कि जब भी हम लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं तो देर इज़ अ लैग ऑफ अराउंड 5 to 10 seconds. वो आपको जब भी हम ट्रेड कोई देते हैं ड्यूरिंग लाइव, उसमें कभी कभार ऐसा भी होता है कि प्राइस की सडन मूवमेंट होती है न्यूज़ की और आप मिस कर जाते हैं, तो डू नॉट जंप इन बिटवीन, जस्ट वेट फॉर अ गुड लेवल, मे बी द प्राइस विल कम अप, maybe the price is going to make us a little bit of drawdown. With that drawdown, with you as a cautionary measure, you can enter with a proper stop loss. उसके बाद फिर आप उस ट्रेड को लें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली आप बस जंप कर दें और वो ट्रेड जो है वो ठीक हो जाएगी। अच्छा, जो जितने लोग नए आए हैं ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें कि जब भी हम आएंगे, लाइव आएंगे, तो देन यू विल नो दैट वी आर लाइव। और जो अभी न्यू आए हैं, ज़रूर जो लाइक्स के हैं, वैसे बहुत ही लो लाइक्स मिले हुए हैं भाई, थोड़ा सा लाइक रेशो बढ़ाएं ताकि वी अंडरस्टैंड दैट यू आर एक्चुअली liking our video. जी, ट्रम्प जो है वो, यस यू आर राइट, ट्रम्प का जो है वो देयर मोर चांसेस ऑफ ट्रम्प। मैं आई पर्सनली आई फील लाइक दैट ट्रम्प शुड विन, ठीक है, और आई पर्सनली फील लाइक दैट ट्रम्प को जीतना चाहिए भाई, ट्रम्प को जीतना चाहिए। जीतना इसलिए चाहिए भाई, देखें ट्रम्प जीतेगा तो फिर ही आई थिंक दैट विल be good for their economy and also good for their US dollar. ठीक है, ट्रम्प जो है वो जीतेगा, एंड ज़्यादा चांसेस यही हैं कि ट्रम्प जो है वो इलेक्शंस जीत जाएगा। थोड़ी सी बफरिंग बीच में देता है, बट डू नॉट वरी अबाउट दैट।
Let's see on the chart. अभी जो मैं मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट मूवमेंट इज लाइक दिस। ठीक है, अभी जो मैं मूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, दैट मूवमेंट इज लाइक दिस। It should a little bit go and retest that line, trend line and then come down। ये एक जोन है जिसको फिर ब्रेक करना ज़रूरी हो जाएगा गोल्ड के लिए। मैं लोअर टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, मैं हाई टाइम फ्रेम की बात में नहीं कर रहा। ठीक है, तो गोल्ड को फिर ये जोन ब्रेक करना है, देन इट विल गो फर्दर डाउन। जी जी बिल्कुल, डॉलर इंडेक्स जो है वो इट इज़ मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। डॉलर इंडेक्स जो है वो बिल्कुल ऊपर जा सकती है, और अगर कमला हारिस जो हैं दे इट इज़ एक्सपेक्टेड कि वो जीतें। उनकी थोड़ी सी सोच वो जिस तरह से होती है ना, थोड़ी सी थिंकिंग थॉट प्रोसेस कि जी खर्चा करके और लोगों को खुश करना है, थोड़ा सा इस तरह की उनकी जो थॉट प्रोसेस है कमला हारिस का, वो ये कि खर्चा करके और फिर लोगों को खुश करना या खर्चा करके काम करना। तो खर्चा जब भी बंदा करता है, जब भी आप कोई चीज़ जितनी ज़्यादा बाय करते हैं तो जो सेलर होता है उसकी प्राइस को उतना बढ़ा देता है। तो ऑब्वियसली पीपल विल ड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट टूवर्ड्स दी हायर साइड। ठीक है, जो कि गोल्ड बनता है, गोल्ड के अंदर ज़्यादातर लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इट इज़ मोस्ट प्रोबेबल that after if Kamala Harris wins, then the price of gold is going high। उसकी एक और रीज़न भी देखें, जो है ना, क्रिप्टो की जो इंडस्ट्री है, इट इज़ ऑल्सो मल्टी ट्रिलियन इंडस्ट्री ना। तो वहाँ से भी लोग अपनी जो इन्वेस्टमेंट, अगर कमला हारिस जीत जाती है तो वहाँ से अपनी इन्वेस्टमेंट को फॉर द टाइम बिंग निकालेंगे। क्रिप्टो जो है वो डंप कर सकती है अगर जो है वो जीत जाती हैं कमला हारिस। देन पीपल विल विड्रॉ देयर इन्वेस्टमेंट एंड दे विल पुट देयर इन्वेस्टमेंट टुवर्ड्स गोल्ड। और जितना बाय करेंगे गोल्ड, रिटेल ट्रेडर्स अभी थोड़ा सा क्रिप्टो से और गोल्ड ट्रेड से थोड़ा सा अवॉइड कर रहे हैं, बट जैसे ही ये कुछ इलेक्शन के रिजल्ट्स आते हैं तो वो फौरन से ही वो लोग जो है अपनी इन्वेस्टमेंट्स को क्रिप्टो से निकाल के गोल्ड में डालना शुरू कर देंगे। एंड यू नो के उसके बाद फिर, क्योंकि मल्टी ट्रिलियन मार्केट है क्रिप्टो की भी, इतना पैसा निकलेगा, गोल्ड बाय होगा तो फिर वो डेफिनेटली इट विल गिव अ बूम टू द गोल्ड। ठीक है, और अगर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इसको विन करते हैं इलेक्शंस को, तो डोनाल्ड ट्रंप का जो आइडिया है, डोनाल्ड ट्रंप जिस जिस नज़रिए के बंदे हैं, मैं तो इस बंदे को बहुत ही बचपन में जब डब्ल्यू डब्ल्यू ई देखते थे तो उस वक्त भी ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो जो मैकमोहन, क्या उसका मैकमोहन को इस तरह करके नाम था। तो विद दैट पर्सन वो जो है ना, ये इनका एक वो मैच था, तो बड़ा ये फनी सा मुझे लगता था डोनाल्ड ट्रंप। एंड व्हेन आई grown up and I saw him, he is now the president of America। It was a bit surprising for me that such funny people are president now, but he is obviously is very visionary person। ऐसा नहीं है, वो तो खैर बचपन की एक थॉटफुल एक वो चीज़ होती है। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है, ही हैज़ अ वेरी गुड विजन अबाउट यू से के जो जितने भी आपके जो इन्वेस्टमेंट्स लाइक जो फौज के ऊपर लगती है, लाइक ऑल दीज आर बुलशिट्स, और इस तरह की खर्चे नहीं होने चाहिए। Yes, Vince McMahon. Yes, very good. यार वसी साहब, good. You are you are like-minded, वसी साहब. Thank you. ये जो है अपना डोनाल्ड ट्रंप का जो नज़रिया है, दैट इज अबाउट द सेविंग्स एंड पुटिंग दैट इन द इन्वेस्टमेंट साइड। ठीक है, तो वो जो इन्वेस्टमेंट माइंडसेट का जो बंदा होता है, जो खर्च को बचा के इन्वेस्टमेंट साइड पे लेकर जाता है, तो उस सूरत में क्या होता है कि लोग जो हैं वो फिर अपना माइंडसेट डेफिनेटली ऊपर से एक जाता है ना, चीज़ आती है ऊपर से आती है
कि अगर आपकी गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट माइंडसेट है तो पीपल विल आल्सो गेट देयर इन्वेस्टमेंट माइंडसेट। ठीक है, तो ये चीज़, अच्छा जितने भी नए लोग हैं, अगेन आई एम रिपीटिंग दैट देयर वेरी फ्यू लाइक्स ऑन दिस वीडियो। ऑब्वियसली इफ यू हैव कम, इफ यू आर liking our work and if you are seeing that we are giving a very authentic news here and we are giving authentic information here, so go and press that like button. Also I request all of you that you subscribe to that channel. नीचे जो दिया हुआ है उसमें होगा ये कि आप जब उसका बेल आइकॉन प्रेस करेंगे, whenever we come for the live streaming, it will give you a notification about we have come now live and you can see that what's going on in the market. ठीक है, तो the thing we expected, you can see that it has given a little bit of retrace and then coming towards the downside. ठीक है, और इसने वो रीटेस्टिंग जो जोन हमने डिफाइन किया था उस रीटेस्टिंग जोन की तरफ तो नहीं जा रहा, बट कमिंग डाउन वी आर स्टिल एक्सपेक्टिंग दैट price should go a little bit upside toward 2740 and then come down. ठीक है, we are still expecting that from here price should go up. और maybe there is one more thing जो कि मैं अभी यहाँ पे आप लोगों को एक्सप्लेन यहाँ पे भी कर देता हूँ कि ये अगर आप यहाँ पे ये देखें, ये अगर आप यहाँ पे ये देखें, ये जगह, ठीक है, और ये वाली ये जगह और ये वाली ये जगह, जो कहते हैं ना कि रेजिस्टेंस बिकेम सपोर्ट। ठीक है, तो हेयर इज आल्सो वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। तो यहाँ से फिर अगेन वी कैन एक्सपेक्ट कि इस जगह पे प्राइस आके और फिर ऊपर जाए इसको रीटेस्टिंग लेने के लिए इस जगह से आके और फिर इस तरह से आ जाए। देयर इज गुड chances that the price can come and touch that price action and then go back। ठीक है, तो इट इज़ ऑल्सो, बट यहाँ से आई एम एक्सपेक्टिंग दिस कि ये भी थोड़ा बहुत, ये जिस तरह से मैंने ये पहले आप लोगों को बताया कि थोड़ा सा प्राइस नीचे जाए और उसके बाद यहाँ पे इसको रीटेस्टिंग करके नीचे आए, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। ठीक है, तो anything is possible in the market, yet we can project and predict। the market is reactive not predictive। इस चीज़ को ज़रूर आपने ज़हन में रखना है कि जो मार्केट है वो रिएक्टिव होती है। इट गिव यू a reaction to some price action or some fundamental news event। it is not predictive कि चाहिए यहाँ से वहाँ तक चली जाएगी। अगर इस तरह से होता तो हर बंदा अमीर होता इस वक्त दुनिया में। ठीक है, अच्छा जितने भी जो भी लोग हैं, those who are watching that, please be very careful today because the market can bring some good volume and because of that you can lose your money or even you can earn good amount of money। I don't say that you will always lose, I do not say that, but because of the different your different you say opinion about the market, it can always shift to the wrong side and give you losses। दो ही चीज़ें होती है ना, या आपके फेवर में जाएगी आपके अगेंस्ट जाएगी, दरमियान में तो नहीं होता ना। दरमियान में तो कंसल्टेशन में कभी आपकी फेवर में आ गई या ना फेवर में आ गई। ठीक है, बट ये जो एक्चुअल में जो ट्रेड्स हैं वो या तो आपकी फेवर में आएंगे या नॉट फेवर में आएंगे। तो उस लिहाज से मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि जो आपको ट्रेड लेने हैं उसमें अपनी मनी मैनेजमेंट का ख्याल रखिएगा because today is a big day and market can take a sudden shift or it can give you a huge amount of loss। ठीक है, जहाँ पे आपको प्रॉफिट मिल सकता है तो लॉस भी हो सकता है। तो ज़रूर स्टॉप लॉस का यूज़ करें, जो भी ट्रेड आप लोगों को बताया जाए उसको स्टॉप लॉस का यूज़ करें। राइट नाउ वी आर एक्चुअली प्रोजेक्टिंग व्हाट द मार्केट इज गोइंग टू डू। ठीक है, और उस हिसाब से हम फिर जैसे ही इस चीज़ की एक प्रोजेक्शन को कंप्लीट कर लेंगे तो देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द ट्रेडिंग। ठीक है, ट्रेडिंग साइड। अच्छा अभी जो मैंने आप लोगों को जो दो पोजीशंस यहाँ पे डिफाइन करके दी हैं, राइट नाउ मार्केट इज एक्चुअली मूविंग इन अ वेरी बोरिंग वे ना। तो वो हम उस चीज़ को थोड़ा सा देख भी रहे हैं कि अगर फॉर एग्जांपल प्राइस इसी बोरिंग सिचुएशन में, ऑब्वियसली बोरिंग सिचुएशन में कॉन्टीन्यूसली नहीं चल सकती। टुडे इज़ अ बिग डे, आज का और कल का दिन इट इज़ अ बिग डे और मार्केट विल ब्रिंग सम वॉल्यूम बट देयर इज
पॉसिबिलिटी कि जो है ना वो थोड़ा सा जब तक के न्यूज़ इवेंट ये ट्रेड बैलेंस की न्यूज़ और जो मैन्युफैक्चरिंग जो सर्विसेज पीएमआई है और ये इसमें थोड़ा सा देर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि प्राइस जो है वो थोड़ा कंसोलिडेट करती रहे टिल द टाइम के जो इन्वेस्टर्स हैं दे ब्रिंग देयर मनी इन द मार्केट। ठीक है, तो ये चीज़ हो सकती है। अच्छा, टिल दैट टाइम लेट्स सी, हम थोड़ा सा जो गूगल कर लेते हैं अबाउट इलेक्शन जो फोरकास्ट है, इलेक्शन रिजल्ट फोरकास्ट। अच्छा, साथ ही पॉली मार्केट को भी ओपन कर लेते हैं। पॉली मार्केट, अच्छा पॉली मार्केट पे अभी 60% हो गया है। अच्छा खासा जो है वो लीडिंग दे रहा है इस वक्त ट्रम्प का। और अच्छी खासी जो है वो लीड दिखा रहे हैं इस वक्त ट्रम्प की। जब बीच में ये जब ये सितंबर ये जब चल रहा था एट दैट टाइम बिल्कुल बराबर आ गए थे ट्रम्प। खैर शुरू से ही बहुत ज़्यादा ट्रम्प का चल रहा था। एंड यहाँ पे जब बाइडन बाइडन जो है ना वो जब उसको वो हुआ है ना बाइडन का जब फॉल आउट हुआ है एंड आफ्टर दैट ट्रम्प जो है वो ऑब्वियसली कमला हारिस देन जब बाइडन जो है वो हटा है बीच में से। ठीक है, तो उसके बाद फिर जो कमला हारिस है वो शी हैज़ टेकन ओवर एंड नाउ यू कैन क्लियरली सी के जो अक्टूबर एंड और जो अभी इस वक्त सिचुएशन जो चल रही है पॉली मार्केट के हिसाब से, जिसमें लोग ये बेसिकली पॉली मार्केट इज एक्चुअली अ बैटिंग सॉर्ट ऑफ कह लें कि ये जो पॉल है कि लोग बैट करते हैं एंड दे गिव बिलियंस ऑफ डॉलर्स इस वक्त एट स्टेक होते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा फॉर देयर फाइनेंशियल गेन्स। तो उसमें जो भी इस वक्त चल रहा है दैट इज 61% अबाउट ट्रम्प। ठीक है, तो अभी जो ये सिचुएशन है इसमें अभी यही चल रहा है। यस, देर इज़ अ पॉसिबिलिटी डेफिनेटली। जो आज है वो हम इसको जस्ट सिर्फ मॉनिटर करेंगे। वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि हम इसको मॉनिटरिंग पे रखें। जैसे ही अभी जो न्यूज़ आएगी उस वक्त हम इसको ट्रेड को फर्दर भी देखेंगे कि व्हाट वी कैन डू फर्दर। और अभी फॉर सम टाइम आई एम गोइंग टू टेक माई लैपटॉप टू द चार्जिंग और ये थोड़ा सा चार्ज भी हो जाएगा और उस वक्त तक 15-20 मिनट के बाद न्यूज़ का टाइम भी हो जाएगा जो कि ट्रेड बैलेंस क्या है। फर्स्ट आई विल ट्राई कि मैं इसको जो सिग्नल है उसको यहीं पे लाइव मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, सो मस्ट कम लाइव आफ्टर हाफ एन आवर। सो स्टे विद अस। अभी थोड़ा सा मार्केट बोरिंग सिचुएशन में ही चल रही है। इट इज़ नॉट गिविंग अस सम गुड opportunities, so we will come live after 20-30 minutes when there is a good volume and we will keep on we will keep on doing some good trading। ठीक हो गया? अच्छा, I'm going to put that on charge and after that I will come live again. Thank you.